मॉर्निंग ऑल। तो लास्ट क्लास आम कंटिन्यू करूँ एनिमल टिश्यू एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू. So we have classified the animal tissue into 4 types. Excuse me. 4 different types. That is your epithelial tissue, then connective tissue, muscular tissue and the neural tissue. Epithelial tissue is a tissue. It is a covering part. Okay, it covers our body parts. Hence, it provides protection to us, protection to our body parts. And there are also epithelial tissue. They are present on the inner lining. Inner lining re jota rahibo seta kon karibo? Secretion, maybe absorption, okay, or maybe filtration. Then the features of epithelial tissue we have completed. Epithelial cells are resting over a particular membrane, that is called as basement membrane. This is the first and important feature of the epithelial tissue. The cells गुड़ाक कौन करते गोटे मेम्ब्रेन उपरे थे, जो मेम्ब्रेन टाक आम बेसमेंट मेम्ब्रेन बोली कहूँ. बुझी हम. देन epithelial cells are avascular. No direct blood supply to them. Epithelial cells को कौन है डायरेक्ट ब्लड वेसल्स सप्लाई है नथिबो. So they will get their oxygen, they will get their nutrients from the underlying blood vessels present below the basement membrane. So basement membrane तले जो blood vessels अछि, तो सही टू ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स डिफ्यूजन प्रक्रिया माध्यम रे विसरण प्रक्रिया माध्यम रे समान पाई जिवे. क्लियर. एंड द स्पेस इन बिटवीन द सेल्स आर एब्सेंट. जोड़ा आम कहूँ epithelial cells are very tightly packed with each other without any space in between them. cells भितर किसी space बा cavities पाइबो नहीं, very tight packing है थाए. Why? Because they provide protection. One more thing, epithelial cells have the maximum power of regeneration. If any part of your body is lost, then that lost part is replaced by the division of the remaining cells. बुझी कि नहीं. जदि मोर स्किन सपोज ये किसी लॉस हो जाए, तो सी जो स्पेस क्रिएट है, कैविटीज क्रिएट है, तले थी सेल्स आखपाखे थी सेल्स दे विल डिवाइड, दे विल स्टार्ट मेकिंग न्यू सेल्स, एंड नाउ दिस स्पेस इज गेटिंग फिल्ड अप. क्लियर. So in the next part we have discussed the types of epithelial tissue. Epithelial tissue को हमें classification करिया को try करते लो on which basis? Based on the number of layer of cells. ये जो basement membrane रहिला तापर cells टा केतेटा layer arrangement है कि रचंदी. The cells may be arranged in one layer, single layer, that is the simple epithelium, or on the other hand the cells may be arranged one by one in multiple layers. So it is called as your compound epithelium. Compound epitheliums are thick epithelium, simple epitheliums are thin epithelium. So as the name suggests, it is compound, it is thick. Its main function is to provide the protection. So compound epithelium रो main purpose कौन है गला? Protection दवश. So while thinking about the simple epithelium रा कौन खबर? Cells are arranged in one layer, okay, called as simple. Thin epithelium, or this is called as unilayer epithelium. Simple epithelium, the cells are arranged in one layer, single layer, above the basement membrane, unilayer epithelium, okay, and it is classified. Simple epithelium is classified with respect to the shape of cells,
सो ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन ऊपर जो सेल्स गुड़ाक रे अरेंज होकर से सेल्स मानकर आकार केमती देखा जाऊर सेप केमतिका सम सेल्स आर वेरी फ्लैट सेल्स थिन सेल्स सम सेल्स आर लाइक क्यूब देख ना क्यूब लड्डू गोटी क्यूब सम सेल्स आर टॉल सेल्स okay and some cells they have cilia some cells have microvilli so different kinds of the modifications present so let me tell you one thing the sap it is classified into following types number 1 simple squamous epithelium simple cuboidal epithelium 3 simple columnar epithelium 4 simple ciliated epithelium okay and the last one is my pseudostratified epithelium. This is your pseudostratified. How? Simple squamous, cuboidal, columnar, ciliated and stratified. 5 types of the simple epithelium. So then I will focus on simple squamous. So next part देखिए आमे गोटे कि what is simple squamous epithelium. Number 1 simple and squamous simple and squamous epithelium simple and squamous epithelium यार माने कौन सो जिते बेले गोटे एपिथेलियल टिश्यूर नाटी तुम पढ़ुच इट हैज 2 पार्ट्स द फर्स्ट पार्ट इज सिंपल और इट मे बी कंपाउंड सेकंड पार्ट जोटा स्क्वामोस लिखा है से नाटा चेंज हो स्क्वामोस क्यूबोइडल कलुमनार सिलिएटेड एंड व्हाट एवर इट मे बी सो दिस फर्स्ट पार्ट ऑफ द नेम रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ लेयर्स ऑफ द सेल्स the second component that indicates what the shape of the cells. Are you getting me? First component is speaking about the number of layers. Second component is telling you about the shape of the cells. Okay. Then see, as it is simple squamous, तो आमे first टाको explain करिबा तापर second टाको explain करिबा है जीवो structure. केमितिका स्ट्रक्चर है फास्ट सिंपल माने कण सेल्स आर अरेंज्ड इन one layer in the single layer above the basement membrane so it is called as simple epithelium. So my next question is why this is called as squamous? Okay, fine, simple squamous. Simple means it is unilayer. Then why it is squamous? In Greek language, the word squamous means flat. It is flat in shape. So second point you can write the cells are flat in shape. The cells are flat in shape. Imagine जदि गोटे सेल्सटा फ्लैट ओके फ्लैट मान थिन ता भीतर थिबा न्यूक्लियसटा केमती रहइबो न्यूक्लियस इज आल्सो गेटिंग फ्लैटेंड जदि तुमर घरटा छोट हो तुम्हें शोला बेलू मुड़ी की शुब ठीक ना नहीं सेलटा जब छोटा हो न्यूक्लियस ऑटोमेटिकली फ्लैट विदाउट एनी डाउट हियर न्यूक्लियस
is flattened. Nucleus is flattened. Cells are flat in shape. Flat ହେଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ? Thin. Okay. Nucleus is flattened. And the boundaries of the cells. Cell जो plasma membrane जो boundaries, demarcation, it is rough. It is not regular. So I can write this information for you. The cells have irregular boundary. तो जदि बाउंड्रीटा तुमर इरेगुलर हो जाए ताको आम कौन कहवा? टेसेलेटेड एपिथेलियम. टेसेलेटेड एपिथेलियम. केमती सपोज चित्रटा देख तुम एमती रफ 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 एमती सब थी इरेगुलर बाउंड्रीज देयर न्यूक्लियस. आर यू गेटिंग मी? Cells have the irregular boundaries. Next point. सेल्स अरेंजमेंट केमिति का हेतिबो? जिमती घरे फ्लोर रे टाइल पड़ी थाए सिंगल लेयर पड़ी कर थाए. गोटे टाइल आ गोटे टाइल को जोड़ी थी, गोटे टाइल आ गोटे टाइल जोड़ी थी ने गोटे टाइल तापर आ गोटे टाइल तापर आ गोटे टाइल तापर आ गोटे 10टा टाइल थाक थाक होई थी सेम तो नहीं. इट इज टाइल्स आर अरेंज्ड इन वन लेयर. So just like the arrangement of tiles on a floor, here the simple squamous epitheliums are also arranged. So please note down this point. The cells are arranged like tiles on a floor. Cells are arranged like tiles on a floor, hence it is called as pavement epithelium. तो सेति में आम कौन कहवा? Pavement epithelium. Hence it is called as pavement epithelium. कौन पाए? Because in the Greek language, pavement means tile. Greek भाषा रे टाइल्स को कहते पेवमेंट. तो टाइल जमीती का फ्लोर रे अरेंजमेंट है कि थाए सेल्स गुड़ाक सेमती सिंगल लेयर अरेंजमेंट है कि बेसमेंट मेम्ब्रेन पर अच्छे. सो इट इज योर फ्लोर बट इन केस ऑफ एपिथेलियम इट इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन. तो फ्लोर ऊपर टाइल पकईदेलु, बेसमेंट मेम्ब्रेन ऊपर सेल्स हो जाइए एक्जाक्टली सेम अरेंजमेंट. सो इट इज कॉल्ड एज पेवमेंट एपिथेलियम. ठीक अच्छे. नेक्स्ट पॉइंट इट्स a very common point. The cells are avascular. Cells are avascular, that is without direct blood supply. Without direct blood supply. बुझे हम तो तापर आम कौन देखा कि जो स्क्वामस सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम आम स्ट्रक्चर बुझी सारे पढ़ी सारे शिखी सारे. ये सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स गुड़ाक आम बॉडी भितर आम शरीर भितर कौ कौ जगार एगुड़ाक सब थाए. आर काम कौन? व्हाट इज इट्स फंक्शन? सो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम लोकेशन देखा आम देन फंक्शन देखा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू द लोकेशन इन वन कॉलम. मेक टू कॉलम. गोटे कॉलम रे लोकेशन लेखा एंड इन द सेकंड कॉलम यू प्लीज राइट अबाउट द फंक्शन of this simple squamous epithelium. Fine.
So, where this kind of tissues is you will get in your body? So, first of all, first location, linings of alveoli. So, alveoli lining is simple squamous epithelium. What could be the corresponding function here? So, when we talk about alveoli, alveoli माने कौन? ग्रीक लैंग्वेज रे alveoli रो अर्थ होला ग्रेप्स अंगूर. सो तुम चिंता कर कि आम बॉडी रे कौ जगह एमती किसी स्ट्रक्चर अच्छे अंगूर भाया देखा जाए बहुत सारा स्मॉल ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन ए ब्रांच that are filled with air. So, could you able to remember? In our body, these are the structures. एमती सब ब्रांचेस हो ये सब अंकुर पेंथा गुड़ाक थी मन पड़े कि नहीं ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर्स एयर फिल्ड स्पेस एंड एक आम कौन कहवा alveoli प्रेजेंट इन आवर लंग्स फुसफुस भितर अच्छे जहाँ कोटरिका बोली आम पढ़ी कोटरिका छोट छोट सब alveoli दीटा लंग्स मिसईदे दीटा फुसफुस मिसईदे 30 crores of alveoli are present 30 कोटी alveoli present in your both lungs for the exchange of gases remember तो जिते बड़े आम inspiration नौचु so air from the atmosphere enter into my lungs so atmosphere जो air रे थिला oxygen that will go to my lungs here right now so lungs रे जाके सब alveoli पाखरे पहुंची गला पर से ऑक्सीजन टा ब्लड को चली गला ब्लड रे जाके बॉडी रे जति के सेल्स अछि लिविंग सेल्स 100 trillions of cells are there to make my body okay and each and every living cells are waiting for oxygen when oxygen will come to them so blood रे जाके प्रत्येक 100 trillion cells पाखरे ऑक्सीजन पहुंची गला ग्लूकोज पहुंची गला से माने ग्लूकोज रो जारण करी ऑक्सीडेशन करी एनर्जी बाहर करले प्लस किछि कार्बन डाइऑक्साइड तैयारी कर देले से कार्बन डाइऑक्साइड सबु सेल लो 100 ट्रिलियन सेल रो प्रोडक्शन होतबा निर्गत होतबा समस्त कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड माध्यम रे आसी पुणी लंग्स पाखरे पहुंची गल लंग्स कोन करिवो रिमूव्स इट आउट टेक्स ऑक्सीजन रिलीज CO2 नहीं so put the hand on your chest you feel the inspiration and expiration so every time your chest expanding contracting lungs expanding and contracting okay हो कि नहीं so ये जो gaseous exchange रो कथा होउछ को जगह रे सेटा होउछ so there are blood capillaries surrounding this alveoli तो गोटे गोटे कोटरिका को गोटे सिंगल alveoli को पाखापाखि 30टा कैपिलारी लगी था रक्त कैसिक 30 capillaries and they were waiting for the oxygen and release carbon dioxide yes so near this wall alveoli रो wall ले ताले कौन होची गोटे alveoli को जदि हमें देखिबा for example this is alveoli this is a single alveoli and this is my blood vessels तो alveoli रो आसला के ऑक्सीजन ब्लड रो गला के CO2 तो ये जो वाल जो अच्छी आंको सेल्स गुड़ा कोथिरे तयारी सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम से फंक्शन ताले कोन हे जीवो डिफ्यूजन ऑफ गैसेस विसरण diffusion of gases very simple okay the next part in our body where these simple squamous epitheliums are present so body ro how could thibe simple squamous bole next location my second location is linings of Bowman's capsule
लाइनिंग्स ऑफ बाउमेंस कैप्सूल। उसका क्या फंक्शन होगा बेटा? लाइनिंग्स ऑफ द बाउमेंस कैप्सूल। बाउमेंस कैप्सूल टा कोउठी थिबो? इन योर किडनीज इनसाइड द नेफ्रॉन। नहीं, नेफ्रॉन टाको जदि तुम देखिथिबो, नेफ्रॉन रो स्ट्रक्चर टाको जदि भल से देखिथिबो, यू विल गेट अ कप लाइक स्ट्रक्चर। दिस इज ए नेफ्रॉन। मने पड़ुची 10 lakhs, 10 lakhs, 20 lakhs of the nephron present in the both kidneys. तो ये नेफ्रॉन रे कौन कॉन्सेप्ट हुए? तो ये ब्लड आसुथो नेफ्रॉन भीतर को। अच्छा, ये ग्लोमेरुलस, बुझीगला? तो ये जगह कौन हो फिल्ट्रेशन हुए। तो ये जो लाइनिंग टा रहा, जो कप टा रहा ना, दिस कप इज कॉल्ड एज बाउमेंस कैप्सूल। दिस cup is called as Bowman's capsule। बुझेला? गोटे बेलून नहीं जाओ, बेलून फुंकी दियो, सुताड़ा बांध दियो। जैसे बेलून को एमती पंच करो धीरे की, जेंटली यू प्रेस द बेलून, तो हाथटा पशिव ता भितर, एंड दिस फिंगर्स आर लाइक ग्लोमेरुलस एंड द बेलून इज द Bowman's capsule। आउ कौन गला? ये जो पार्ट रहा नेफ्रॉन रो, दिस पार्ट इज माय डिस्टल कन्वोल्यूटेड टेबल एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड एज प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टेबल। दिस इज द लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले। दिस इज द कलेक्टिंग डक्ट। बुझे हम? PCT stands for what? Proximal convoluted table। DCT stands for what? Distal convoluted table। I am writing for you here PCT, proximal convoluted table। proximal convoluted table। DCT means what? Distal convoluted table। प्रॉक्सिमल माने स्टार्ट, डिस्टल माने एंड, कन्वोल्यूटेड माने कॉइल्ड। तो टेबल रो स्टार्टिंग रे किछि कॉइलिंग हिच, टेबल रो लास्ट पार्ट रे किछि कॉइलिंग हिच। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टेबल, डिस्टल कन्वोल्यूटेड टेबल। बुझे कि नहीं? तो वर्तमान ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर है, दिस कप इज कॉल्ड एज Bowman's capsule। सही कप रे जदि मुंद रखिली गोटे कप अच्छी, एंड दिस माय फिंगर्स, दीज आर कॉल्ड एज द ब्लड वेसल्स, कैपिलारीज। कप भितर अच्छी ब्लड या भितर फ्लो हो, फिल्ट्रेशन हम नहीं। दिस लाइनिंग्स ऑफ द Bowman's capsule, दिस इज कंपोज्ड ऑफ सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। तो जो यूरिन फॉर्मेशन हुए क्या भितर, नेफ्रॉन भितर यूरिन फॉर्मेशन हुए, तो जेतिकी वेस्ट प्रोडक्ट मोर बॉडी रे तैयारी हैला से यूरिया तैयारी हो, यूरिक एसिड हो, क्रिएटिनाइन हो, जी टॉक्सिक प्रोडक्ट तैयारी हो मोर बॉडी रे, सोडियम Na+, L-, पोटासियम H+, एवरीथिंग एल्स। तो जी सेल्स अच्छा बॉडी रे, से लिविंग रहिबा पाई मेटाबॉलिज्म निहाती जरूरी, चयापचय है। सो एवरी सेल्स आर एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द मेटाबॉलिक प्रोसेस, एनी काइंड ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी। तो जदि प्रोसेस है, जदि प्रक्रिया प्रतिक्रिया होदेले किसी वेस्ट प्रोडक्ट बाहर कि नहीं, वेस्ट प्रोडक्ट बाहर, एंड दीज वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द सेल्स कम्स टू द ब्लड सर्कुलेशन। तो सेल्स भितर, साइटोप्लाज्म भितर जो वेस्ट प्रोडक्ट तैयारी है, सेटा सब ब्लड सर्कुलेशन को आसो। ब्लड र काम कौन? से नहीं फिल्टर पाखक जीव, एक्वागार्ड पाखक जीव, दैट इज द पेयर ऑफ किडनीज, कि बाबा एतिक वेस्ट जिनस तू छाणी फिंगी दे, गला ब्लड रे इम्पियर सब्सटेंसेस, वेस्ट प्रोडक्ट। तो जाइए पहुँचला ये गला वेस्ट प्रोडक्ट, एंड दिस इज नेफ्रॉन फिल्टर। वेस्ट प्रोडक्ट गुड़ा सब छाणीदेला, फिल्टर आउट होगा।
फिल्टर आउट हो सारा पर से वेस्ट प्रोडक्ट सहित किछि किछि भल सब्सटेंसेस भी दरकारी सब्सटेंस जोड़ा आम थ्रेशोल्ड सब्सटेंस कहूँ सेटा भी फिल्टर हो जाए। तो सब फिल्टरेट आसला एपटे आसिक बाहरी जीव बट जोटा इम्पोर्टाट मटेरियल्स एक्सक्रेशन होगा कथा नुह बट फिल्टर हो जाको पुणी रीअब्जर्प्शन करा जाए पुनः शोषण करा जाए बुझे कि नहीं पुनः शोषण माने से नेफ्रॉन भीतर पुणी ब्लड को टाण बसी शोषी नब से कौटे हो पीसीटी हुए डीसीटी हुए पुनः शोषण मन पड़ू कि नहीं तो पुनः शोषण रीअब्जर्प्शन पड़ेगा तापर से एक्सक्रेट हो इन द फॉर्म ऑफ यूरिन ओके द वेस्ट प्रोडक्ट्स आर डिजॉल्व्ड इन द वाटर रिमूव्ड फ्रॉम योर बॉडी दैट इज कॉल्ड एज यूरिन। तो किडनी रे काम कौन है ब्लड रु वेस्ट मटेरियल टाक फिल्टर करना बुझीगला वेस्ट मटेरियल्स आर फिल्टर्ड वाटर फिल्टर्ड सोडियम क्लोराइड फिल्टर्ड पोटासियम फिल्टर्ड and removed from the body. Urea is filtered. Okay. So in the Bowman's capsule ताले कौन होची filtration, PCT, DCT, LS, reabsorption and this is removal. चलिए देखते हैं उसका फंक्शन. Linings of Bowman's capsule. It is what? Filtration of ब्लड फिल्ट्रेशन। तीसरा क्या काम है उसका देखते हैं। थर्ड फंक्शन दिस सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम इज ऑल्सो प्रेजेंट इन लाइनिंग्स ऑफ द कैपिलरी लाइनिंग्स ऑफ कैपिलरी लाइनिंग रे हमरो कौन रहे सो कैपिलरी लाइनिंग टा कौन देखा आम प्रथम कथा तो मन कर अच्छा ये मुझे लिखी दूँ तापर से डायग्राम बनवा लाइनिंग्स ऑफ कैपिलरी लाइनिंग रे जो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम टी थाए तार नाटी कौन जानिच नाटी है एंडोथेलियम। देखिए फॉर एग्जाम्पल दिस इज माय आर्टेरीटा कौन धमनी देन दिस आर्टरी इज ब्रांच्ड इनटू कैपिलरीज दीज आर द कैपिलरीज रक्त कोशिक तापर से सब कौन हो पुणी रियूनाइटेड हो भेन फॉर्मेशन हो ये है ब्लड सर्कुलेशन ब्लड वेसल्स संरचना यहाँ है तुम कौन आर्टेरी बा धमनी ये है रक्त कोशिक बा कैपिलरी ये है शिरा बा तुम भेन तीन टा जिनस अच्छे ना आर्टेरीज भेन एंड द कैपिलरीज। सो ब्लड आर्टेरी रे जाऊँगी प्योर ब्लड धमनी भितर अम्लजान युक्त रक्त प्रवाहित हुए प्योर ब्लड एलॉन्ग विथ न्यूट्रिएंट्स भेन रे कौन हो इम्प्योर ब्लड हो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अंगारकाम्ल युक्त रक्त विशुद्ध रक्त तादे थाए दूषित रक्त ता भीतर थाए ठीक अच्छे। तो ये जो ब्लड जो जाऊँगी या भितर विथ वेलोसिटी v1 नाउ ये जो v1 वेलोसिटी रे गला से बर्तमान देख ये गला v2 ये गला v3 ये गला v4 ये गला v5 तो ये कैपिलरी को सराउंड करिकरी किसी सेल्स हम पाखे अच्छी here are some cells these are the living cells बुझेगा कैपिलरी चारि पाखे बहुत सारा सेल्स अच्छे दिस सेल्स आर वेटिंग फॉर ऑक्सीजन वेटिंग फॉर न्यूट्रिएंट्स। तो ब्लड रे अच्छे ऑक्सीजन तो आसीगला ब्लड रे अच्छे न्यूट्रिएंट्स तो आसीगला ये नहीं सर पुणी कौन देवे कार्बन डाइऑक्साइड देवे वेस्ट प्रोडक्ट देवे यहाँ तो दीज आर कॉल्ड एज टिश्यू
लिविंग सेल्स से कैपिलरी चारिकड़े सेल्स गुड़ाक पूरा भर्ती थे तो से कौन ने ब्लड रू ऑक्सीजन ने पोषक तत्व ने न्यूट्रिएंट्स ने रेदर देवे कौन ताकू कार्बन डाइऑक्साइड एंड द वेस्ट प्रोडक्ट आर यू गेटिंग मी इज कंफर्टेबल यस फाइन सो माय डाउट इज माय क्वेश्चन इज तो ये जो एक्सचेंज हो मटेरियल इन बिटवीन द ब्लड एंड द सेल्स द मटेरियल इज गेटिंग एक्सचेंज्ड ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स कार्बन डाइऑक्साइड एज वेल एज द वेस्ट प्रोडक्ट तो ये मटेरियल एक्सचेंजटा कौन आर्टेरी रे होनी कौन भेन रे होनी व्हाइट अकर्स इन द कैपिलरी बुझे चेष्टा कर जो भी न्यूट्रिएंट एक्सचेंज हो गैसियस एक्सचेंज हो एनी काइंड ऑफ द मटेरियल एक्सचेंज व्हाइट ऑलवेज अकर्स इन द कैपिलरीज नॉट इन आर्टेरी नॉट इन वेन बात क्या है राज क्या है उसका could you able to think why always the material exchange in between the blood and cells, blood and tissue occurs near capillary, not near the vein, not near the artery. मैंने एक क्लो भी दे दिया आपको V1, V2, V3 करके लिख दिया कुछ very simple thing. I will give you a very beautiful example. For example, तुम रास्तारे चली चली जाऊच मॉर्निंग वॉक रे आर पाखे आउ जड़े चली चली आसुँच तुम बहुत क्लोज फ्रेंड चिन्हा परिचय अच्छे तुम आराम से कथा पार तुम गोटे कॉलेज आगर कॉलेज रे पढ़ुच सियार सांगटा कौटी आ गोटे कॉलेज रे पढ़ुची बाटर देखला तुम केबे छुट्टी खुल कौन कथा आराम से धीरे धीरे चली चली जाऊच कथा केबे जीवा कॉलेज सिंधी सब चलती डिस्कशन तो आराम से कथबार्ता हो गला तुम गोटे 2 मिनट टाइम पाइल से जावा आसा भितर यू विल शेयर योर थॉट्स फीलिंग्स व्हाट एवर इट मे बी एंड यू विल गो टू योर होम नो प्रॉब्लम बट ये जो कथा हेलो जी जिनस एक्सचेंज ऑफ योर थॉट्स एक्सचेंज इन बिटवीन यू द टॉकिंग इन बिटवीन यू इज इट पॉसिबल व्हेन यू विल क्रॉस ईच अदर इन ए बाइक विथ 100 km/h स्पीड एवरी तुम जाऊच एपटे गोटे 100 जाऊच सेपटू सी गोटे आस 100 एति कथबार्ता हो पार कि सागे सागे क्रॉस कर केते सेकेंड लगे क्रॉस कर फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड रे क्रॉसिंग इच अदर सो यू कैन नॉट शेयर योर फीलिंग्स ये मॉर्निंग वॉक रे गला बेलू धीरे धीरे जाऊँ अधिक समय लगे तुमको क्रॉस करने कंटाक्ट टाइम इनक्रीजेस यदि कंटाक्ट टाइमटा इनक्रीज हो गला बेसी समय कंटाक्ट रही तो एक्सचेंज हो पार ना कंटाक्ट टाइम जो कमिला एक्सचेंज केमती हम इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल ओके तो ये भी सेल्स अच्छे नो डाउट ये भी सेल्स अच्छे सब सेल्स टिश्यू सब जगह अच्छे नो प्रॉब्लम बट व्हेन वी थिंक अबाउट द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स इट इज नॉट पॉसिबल इन द आर्टेरी एंड वेन व्हाई बिकॉज आर्टेरी रे जो ब्लड फ्लो होची जो वेलोसिटी रे V1 इट इज हाई स्पीड वेन रो जो ब्लड फ्लो होची V5 वेलोसिटी इट इज आल्सो हाई स्पीड द ब्लड मूव्स इन लो स्पीड minimum speed in the capillary only blood ro jo flow hochi blood flow velocity is minimum and minimum in capillary only so capillary भितरे सबुठारु कम स्पीड रे ब्लड टी जाए बुझिगला अच्छा कौन पे कम स्पीड रे गला देखो एठू जति की ब्लड जाउथिला से वर्तमान टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड इज डिवाइडेड इनटू 3 कैपिलरीज 3 भाग रे विभक्त हो गला ब्लड तो क्वांटिटी बढ़िला ना तो एटी जति की ब्लड थला से सेम अमाउंट रो ब्लड टा बे डिवाइड हैला बाय 3 3टा कैपिलरीज हे पारे 4टा हे पारे 10टा हे पारे 50टा हे पारे तो जते नंबर ऑफ कैपिलरीज हबो ब्लड टा सेते भाग हे जिवो सरफेस एरिया बढ़ी जिवो वेलोसिटी कमी जिवो नहीं माने करो तुमे गोटे हॉस्टल रही तुम गोटे पाइप रे 10टा टैप लगी 10टा टैप समस्त डाइनिंग रे खाइले हॉस्टल लाइफ रे टैप खोल धोले गोटे मात्र टैप खोलची बाकी 9टा बंद अच्छे जो स्पीड रे ब्लड बाहर एट ए टाइम 10टा जगह खोल दियो कौन हम इनपुट तो समान रही ना डिवाइडेड बाय 10 द स्पीड विल डिक्रीज ओके नहीं द स्पीड विल डिक्रीज द वाटर फ्लो थ्रू द टैप इज विल डिक्रीज आल्सो so here the blood in the artery is divided into 3 capillaries maybe 30 capillaries maybe 50 capillaries like that so due to increase in the surface area
In the capillaries, the velocity of the blood flow will decrease. So, the blood धीरे धीरे जाऊँ velocity जदि कमिला blood are moving in a slow speed. जदि slow speed रे जाऊँची, then it enhances, it favors the exchange of the materials. Cells are hungry. They are not getting nutrients since last 5 hours. नहीं कल रात्रि जा खाई आम एपर्यंत खाइन दे सेल्स मान भोक लगे दे आर हंग्री एनफ एंड दे आर वेटिंग फॉर ऑक्सीजन सो ब्लड से धीरे धीरे जाऊथबो एंड दे विल टेक द न्यूट्रिएंट्स दे विल टेक द ऑक्सीजन एंड दे बिकम सडनली हैप्पी सेल्स विल बिकम हैप्पी ठीक अछि सो ताले फंक्शन टा में कोन लिखि परिबा गोटे लाइन रे एक्सचेंज ऑफ द मटेरियल्स बिटवीन blood and cells, blood and tissue. Please note down the function here. Exchange of the materials, exchange of materials between blood and tissue. Between blood and tissue. So material exchange of between blood and tissue between in the capillary only, not in the artery, not in the vein. Clear? So this is all about simple squamous epithelium. Then we will switch to the next kind of epithelium, that is your simple and cuboidal epithelium. Switching over to the next categories. Simple and cuboidal epithelium. Simple and cuboidal epithelium. So again the same format you apply, simple, unilayer, cuboidal, cube shaped cells. मतलब लड्डू गुड्डी बढ़िया सेल्स गुड़ा कहती है तो अब लिखते हैं स्ट्रक्चर देखिए वेरी सिंपल द फर्स्ट पॉइंट कुड यू टेल मी सेल्स आर अरेंज्ड इन single layer, one layer over the basement membrane, over the basement membrane. Yes. Second word, you unfold the meaning of the cuboidal because the cells are cube-like. The shape of the cells, that is your cube-like cells. The nucleus is not flattened here. Nucleus is spherical and present in the center of the cell. So nuclei are present at center of the cell. तो सेल रो सेंटर रे न्यूक्लियस टी रहिबो एंड सेल्स रे वास्कुलर मोर कॉमन पॉइंट मोर पॉपुलर पॉइंट सेल्स आर ए वास्कुलर विदाउट द डायरेक्ट ब्लड सप्लाई डायग्राम बना के दिखाओगे आपको दिस इज बेसमेंट मेम्ब्रेन फॉर एग्जांपल these are the cube shaped cells न्यूक्लियस नहीं माने सेल्स केमती थी एमती सेल्सटा एटा हला क्यूब लाइक सेल्स चलिए देखते हैं उसका लोकेशन कहाँ पर है और फंक्शन क्या करता है वो ओके लोकेशन एज वेल एज फंक्शन location as well as
function of the simple and the cuboidal epithelium. तो प्रथम कथा है these are present in the linings of gonads. They are present in number 1 linings of gonads. Gonad lining रे कौन काम हबो gamete production. Be careful. Gamete माने कौन जुग्मक sperm production हो बा egg production हो these are called as gametes. Gonads माने कौन ये टेस्टिस ओवारी शुक्राशय और डिम्बाशय जोड़ा पड़ोचे हमें ताको गोनाड्स कहते प्राइमरी सेक्स ऑर्गन. सो गोनाड्स माने these are the primary sex organ. प्राइमरी सेक्स ऑर्गन आम क्या कहवा ना जहाँ भितर कि गैमेट प्रोडक्शन टा हुए. जुग्मक तैयारी होटा गोटे रिप्रोडक्शन प्रजनन प्राथमिक काम. प्रथम गैमेट प्रोडक्शन हम तापर जोड़ा हवा कथा. तो जहाँ भितर प्राथमिक कामटा हूँ प्राइमरी फंक्शन ऑफ द रिप्रोडक्शन इज गोइंग ऑन दैट इज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और द गोनाड्स. तो फॉर एग्जांपल द टेस्टिस इन मेल. मेल रे आमे ताको टेस्टिस कहवा. ओवारी इन केस ऑफ फीमेल. बुझेला. सो मेल बा टेस्टिस भितर स्पर्म तैयारी हबो. ओवारी भितर एग प्रोडक्शन हबो. एटा गोटे गला. नेक्स्ट लाइनिंग्स ऑफ thyroid follicles. Linings of thyroid follicles. थायरॉइड ग्रंथि जो अच्छे मोर ये काटिदे ता भर जो सेल्स होती फॉलिकल्स. दीज आर ऑल्सो सिंपल क्यूबॉइडल. काम कौन है फंक्शन इज सिक्रेशन ऑफ हार्मोन्स. सिक्रेशन ऑफ हार्मोन्स. गोटे एग्जांपल दे दबा. तुम जानी कि थायरॉइड रो को हार्मोनटा तैयारी हुए थायरॉक्सिन. थायरॉइड ग्लैंड सिक्रेट्स द थायरॉक्सिन हार्मोन्स. हे जीवो लाइनिंग्स ऑफ गोनाड्स. लाइनिंग्स ऑफ थायरॉइड फॉलिकल्स. नंबर 3 लाइनिंग्स ऑफ PCT प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूबल. तो यार काम रीएब्जॉर्प्शन ऑफ फिल्ट्रेट. तो जोड़ा मुझे कहूली पुनःसरण हुए नेफ्रॉन भितर फिल्ट्रेशन हो सारापर किसी इंपोर्टेंट मटेरियल्स पुणी रीएब्जॉर्ब हो जाए. सेम थिंग इट ऑल्सो occurs in the linings of decidual show. Note down the same function. Reabsorption of the filtrates हवा. तो अतिक जिनस मन रखी था आम नेक्स्ट क्लास रे पीसीटी रो जो रही सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम डिटेल्स देखा से केमती रीएब्जॉर्ब होती एपिथेलियल सेल्स रो हाउ इट इज मॉडिफाइड फॉर मैक्सिमाइजिंग द रीएब्जॉर्प्शन. तो जो जगह शोषण प्रक्रिया रीएब्जॉर्प्शन रही कौन स्पेशलिटी रही. ऑल दीज थिंग्स विल गो ऑन डिटेल्स इन next episode. Okay, thank you.